तो हेलो एवरीवन, दिस इज सजल सिंह परिहार। तो आज अपन गाइडली का आरबीए असिस्टेंट प्रीलिम्स 2026 मॉक टेस्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसमें अपना कितना स्कोर आता है। इससे पहले मैंने और भी दो मॉक्स को सॉल्व किया है। एक ऑलिव बोर्ड का लाइव था, एक ऑलिव बोर्ड का आरबीए असिस्टेंट का मॉक नंबर 1 था। तो अब अपन आज सॉल्व करेंगे गाइडली का और इसमें देखते हैं कि अपने कितने नंबर आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। टेक द टेस्ट फुल स्क्रीन। सबसे पहले खुलेगा इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन रीजनिंग। ठीक है, सेलेक्ट लैंग्वेज। आई एम रेडी टू बिगिन। ठीक है। The author uses subtle humor to trivialize serious social issues without sounding preachy. To highlight आएगा ना। ठीक है। Because the evidence was plentiful, the judge had no choice but to dismiss the case against the defendant. मे बी इनकरेक्ट। हाँ, ये तो है। इनसफिशिएंट होगा, कंक्लूसिव, ओवरवेलमिंग, अबंडेंट तो हो ही नहीं सकता। द मूवी वॉज सो दैट माई लिटिल ब्रदर हैड टू हाइड बिहाइंड अ पिलो। ये तो वो होगी ना, इकोनॉमिकल नहीं, फ्राइटनिंग होगी, डराने वाली। बोरिंग, फनी, एजुकेशनल तो हो ही नहीं सकती। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, क्लोज टेस्ट है। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली एज लियो स्टेप्ड इनटू द डेंस green forest. He carried a small blue backpack filled with snacks and water bottle. The birds were singing loudly in the trees, making the morning feel very scary तो हो नहीं सकता, lonely हो नहीं सकता, silent हो नहीं सकता, gloomy भी है, वो होता है pleasant होगा। ठीक है। He had been planning this little hiking trip for an entire week. As he walked further, he noticed a tiny squirrel, Gilheri, sitting on a fallen log. The squirrel was holding a brown nut between its small fuzzy limbs. It looked at Leo for a second before quickly, अम, देखो, फॉलिंग तो होगा नहीं क्योंकि चढ़ रही है, स्टेयरिंग होगा नहीं, डैशिंग भी नहीं होगा, क्रॉलिंग होगा ना। इसको भी वो करो। ठीक है। Leo smiled and continued walking along the narrow, winding dirt path. By noon, the air started to feel much warmer than it had been earlier. Leo found a perfect spot near a bubbling stream to sit down and रेस्ट। हो सकता, शाउट होगा नहीं, स्टडी होगा नहीं, एक्सरसाइज नहीं होगा, एक्सप्लोर नहीं होगा क्योंकि बैठे बैठे एक्सप्लोर थोड़ी करेगा। He took out a ham sandwich and bright red apple from his bag. The sound of the cool water hitting the rocks was very relaxing. After finishing his lunch, Leo felt fresh होगा, fresh, lonely तो हो नहीं सकता, sick हो नहीं होगा, ठीक है ना। Leo feel fresh and ready to head back home. He made sure to pick up all his trash so the forest stayed clean. He followed the same trail back, feeling very satisfied. Okay. यहाँ पे क्या है, in order to be successful in a fast-paced environment, one must possess excellent communication skills and the ability to adapt की spelling गलत है ना। ठीक है। Expensive, breathtaking, worthwhile. Despite the fact that the hotel was quite expensive, the breathtaking यही गलत है शायद। हाँ, यही गलत है। And after spending several hours researching the topic online, I finally realized that solution to my problem was much simpler than I had originally thought. Uh, ये सॉल्यूशन में एस कहाँ से आ गया आखिरी में। ठीक है। The architectural design of the new museum combines modern glass structures with traditional brickwork, creating a striking contrast between the। देखो, striking तो सही है ना, striking सही है। स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर से ठीक है। एक बार इसको चेक करना है यार, स्ट्रक्चर सही तो। आर्किटेक्चरल, STRUCTURES, स्ट्रक्चर से, हाँ यही गलत है। ओके ओके ओके। डी से चालू करके देखते हैं, विच अल्टीमेटली नहीं होगा। सी से चालू करते हैं, बाय फॉस्टरिंग फाउंडेशन स्किल्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्रिएट्स अ।
बी के बाद सी, जीडीपी एंड नेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नहीं बी के बाद सी तो नहीं आएगा, तो ये वाला तो नहीं होगा। फिर क्या है सी के बाद ए, बाय फॉस्टरिंग फाउंडेशन स्किल्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्रिएट्स more productive future workforce, more productive future workforce, which ultimately drives higher, इसको छोड़ो यार, अभी कंफ्यूज कर रहा है फालतू। Improving soil organic matter significantly increases the land ability to absorb and retain water, which DEA DEA का पेयर होना चाहिए। DEA का पेयर है यहाँ, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो बी से चालू हो रहा है लेकिन कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम ड्रॉट, यार बी से कैसे चालू हो सकता है? जैसे इम्प्रूविंग, हाँ जैसे कि इम्प्रूविंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर सिग्निफिकेंटली, नहीं, फिर बी के बाद ई फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम ड्रॉट, इम्प्रूविंग सॉइल ऑर्गेनिक, ये भी नहीं लग रहा। ई से ई के बाद डी, इम्प्रूविंग सॉइल ऑर्गेनिक, इम्प्रूविंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द लैंड एबिलिटी, ये वाला होगा ना, EDA। अरे है तो यार, रन ऑफ के बाद सी एंड प्रोटेक्ट्स क्रॉप अगेंस्ट इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ, यही होगा, ये इसमें बी आखिरी में है, ठीक है। ऑन सिंगल शिफ्ट इन, ठीक है, कंट्रीज आइडेंटिफाइंग, इसको अपन बाद ही में करते हैं। चलो पढ़ते हैं। इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ बेकर नेम्ड सिलास हु वाज नोन फॉर हिज अमेजिंग ब्रेड। एवरी मॉर्निंग द वार्म स्मेल ऑफ फ्रेश rolls filled with streets waking up in the sleepy town people. Silas worked from dawn until dusk, शाम सुबह से शाम तक, dusting his hands with white flour and kneading the soft dough. Although he was a hard worker, he was also greedy and always wanted more money. ठीक है, traveler at first, ठीक है। One cold winter night, a tired traveler knocked on the bakery door and asked a crust of bread. Silas looked at the old man's torn cloth and shook his head, refusing to help for tea. I only give bread to those who can pay, Silas said, closing the door firmly against the wind. The traveler sighed and placed a single dull copper coin on a snowy wooden doorstep. The next morning, Silas found the coin, but it had magically turned into bright, shining gold. Overjoyed, he decided he would never bake bread for the poor. ठीक है, only for those with good. He spent all his time polishing his new coin, dreaming of becoming the richest man in the world. His oven stayed cold, and the wonderful smell of bread disappeared from the village. ठीक है। A week later, Silas felt hungry, but when he went to his pantry, he found it was completely empty. He tried to use his golden coin to buy flour from the local farmer, but the farmer had moved away because there was no bread to eat. Silas looked at his shiny gold and realized that he could not eat mid no matter how it sparkled. He sat alone in his quiet in his shop stomach. ठीक है। Silas ran outside and shared his last hidden loaf of bread with a hungry neighbor. As soon as he gave the bread away, the golden coin turned back into simple, dull copper piece. Silas smiled, finally understanding that a full stomach and a kind heart were more than a chest of gold. From the day the bakery fire never went out and no traveler was turned ever away. He had, अरे उसके वो थे ना, he didn't hear that he had no bread left, अरे ये यहाँ आया था ना। एक सेकंड, मुझे चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। करना भूल गया था मैं, नहीं तो अभी लैपटॉप बंद हो जाएगा, फिर अपना मॉक कंप्लीट ही नहीं होगा। सॉरी, है ना। वन कोल्ड नाइट, a tired traveler knocked on the bakery door and asked for a crust of bread. Silas looked at man's old torn clothes and shook his head, refusing to help for free because he had no money. The traveler
could not pay with money, closed holidays, knock on the door, मिली, ठीक है यही होगा. What made the coin turn the traveler? नहीं, by sharing bread. Which word is most similar to overjoyed? And the next morning, Silas found the coin, and but it had magically turned into bright shining gold. Overjoyed, he decided he would never beg bread for the poor villagers again. ठीक है. Overjoyed का मतलब very happy होगा, है ना. Only during the lunch and नहीं from early morning until evening. Why did the village become quiet and stop smelling like bread? हाँ यही था, क्योंकि द ट्रेवलर स्टोल द रेसिपी. नहीं ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था. नहीं, कॉपर इज, बट नहीं, काइंडनेस एंड फूड आर मोर इम्पोर्टेंट देन रिचेस. यस, यही होगा. ग्रीडी का अपोजिट सेल्फिश नहीं हो सकता, मीन नहीं हो सकता, वेल्दी नहीं हो सकता, हमें जनरस. ठीक है. The teacher asked the student to observe the changes in the chemical reaction carefully. They planned to observe the football match by kicking the ball themselves. नहीं, क्या पता है. During our trip to the wildlife sanctuary, we could observe several rare birds in their natural habitat. Hmm, they planned to observe the football match by kicking the ball themselves on the field. ऑप्शन में क्या क्या है? ऑल भी है, इसको छोड़ो. फ्रेजाइल, बी केयरफुल वाइल पैकिंग द ग्लासवेयर, इट इज वेरी फ्रेजाइल. ठीक है. आफ्टर द सर्जरी हर हेल्थ वाज स्टिल फ्रेजाइल, सो द डॉक्टर, बिल्कुल सही बात है. द एंटीक वेस्ट लुक्ड ब्यूटीफुल बट फ्रेजाइल, सो वी प्लेस इट ऑन अ प्रोटेक्टेड डिस्प्ले केस में. तो इसमें ऑल होना चाहिए. अब ये सेकंड का मेरे को नहीं पता कि ये है कि नहीं, तो फर्स्ट और थर्ड तो ऑप्शन में है भी नहीं. ठीक है. इंटरप्रेट, इट्स नॉट ऑलवेज इजी टू इंटरप्रेट समवन बॉडी लैंग्वेज एज स्मॉल गेस्टर्स. ठीक है. ही ट्राइड टू इंटरप्रेट द म्यूजिक बाय टर्निंग, समझना मतलब है ना. इंटरप्रेट द कॉन्टेक्ट केयरफुली. देखते हैं, ये अपन अभी नहीं करेंगे. इसमें क्या था यार कि वो जो गिलहरी थी है ना, एज ही वॉकड फर्दर ही नोटिस्ड अ टाइनी स्क्विरल सिटिंग ऑन अ फॉलन लॉग. द स्क्विरल वाज होल्डिंग अ ब्राउन नट between his small fuzzy limbs. He looked at Leo for a second before quickly falling, dashing, staring, before crawling. क्रॉलिंग ही होगा, इसको करना है अपन को. पहला ऑप्शन चेक करो कि विच अल्टीमेटली ड्राइव्स हायर. अर्ली चाहिए, नहीं होगा. सी से, बाय फॉस्टरिंग फाउंडेशन स्किल्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्रिएट्स अ जीडीपी, नेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. नहीं, बाय फॉस्टरिंग फाउंडेशन स्किल्स, बाय फॉस्टरिंग फाउंडेशन स्किल्स. इसको चेक करना पड़ेगा यार, ऐसे सी ए ई डी बी, है ना. क्या कि बाय फॉस्टरिंग फाउंडेशन स्किल्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्रिएट्स अ मोर प्रोडक्टिव फ्यूचर वर्कफोर्स, विच अल्टीमेटली, हाँ यही होगा. कौन सा वाला कि सी ए ई डी बी, है ना. और फिर ये था कि इसमें भी चेक करो कि कंट्रीज वाइल इंटेंसिफाइंग स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन जियोपॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस, reducing over dependence on single, shift in global supply chains are economic नहीं, ये तो होगा नहीं. reducing over dependence on single economic competition among nations, countries, ये भी नहीं लग रहा अपन को. CBE, CBEDA, इसको चेक करो कि countries while intensifying shifts in global supply chain are economic competition, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. BDA, DACE, ओके. क्या है? शिफ्ट इन ग्लोबल सप्लाई चेन आर ट्रांसफॉर्मिंग जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, रिड्यूसिंग ओवर डिपेंडेंस ऑन सिंगल कंट्रीज व्हाइल इंटेंसिफाइंग स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कंपटीशन अमंग नेशन. 100%. ओके. लैपटॉप का फैन
बहुत आवाज कर रहा है ना। ये सब तो होगा यार। अब ये एरर देखते हैं क्या समझ में आता है। Psychological research suggests that chronic stress can impair memory, weakening immune responses and increase the risk of long-term mental health disorders. मेरे हिसाब से फर्स्ट में होना चाहिए क्योंकि साइकोलॉजिकल रिसर्च suggest that chronic stress can impair memory, weakening weakening हो ये गलत होगा ना। weakening immune response and increase the risk of long-term mental health disorders. chronic stress can impair memory, ये तो सही है। साइकोलॉजिकल रिसर्च, साइकोलॉजी रिसर्च वीकनिंग नहीं होना चाहिए आई थिंक। देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज रीडिफाइंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बाय ऑटोमेट प्रोसेस नहीं हो सकता। ऑटोमेट प्रोसेस एंड इम्प्रूविंग एक्यूरेसी अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। ऑटोमेटिंग हो सकता है ना ये। एक ही बात बी है बी। ठीक। Scientific literacy enables individuals to understand evidence-based arguments, distinguish facts from misinformation, and participate meaningfully in debates at technology and public policy. इसमें तो अपन को समझ में नहीं आया कुछ। Learning to play a musical instrument like the violin demands hours of daily practice and a significant amount of discipline from the student. इसमें भी नहीं आ रहा यार कुछ। Writing a successful novel requires a combination of vivid imagination, steady persistence, and a willingness to revise the same chapter many different more times. डी में तो एरर है। ये क्या है? सेम चैप्टर मैनी डिफरेंट मोर टाइम्स। ओके, ये सब तो अलग चीजें हैं। यार ये दिक्कत कर रहा है। The teacher asked the student to observe the changes in the chemical reaction carefully. First तो 100% है। थर्ड क्या है? You during नहीं, they plan to observe the football match by kicking the ball themselves on the field. नहीं आ रहा। फर्स्ट और थर्ड है क्या ऑप्शन में? नहीं। थर्ड चेक करो। देखो वन तो है तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब थर्ड का कंफर्म अगर मिल जाता तो कि during our trip to wildlife sanctuary we could observe several rare birds in their natural habitat. यार जब थर्ड भी है अगर, फिर ऑल आर करेक्ट ही होना चाहिए। हाँ। बी केयरफुल while packing the glassware, it's very fragile and can break easily. फर्स्ट तो है ना। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके देखते हैं कि फर्स्ट तो है 1 2 3, सेकंड एंड थर्ड तो और आर करेक्ट ही होगा इसमें तो, क्योंकि ये तो है ही। अच्छा ये तो कर लिए थे। It's not always easy to interpret someone's body language as small gestures can have different meanings. Interpret करना मतलब समझना। He tried to interpret the music by turning the volume up really loud and dancing around the room. देखो वन तो है, ये गया ये गया। अब वन के साथ थर्ड आएगा या सेकंड आएगा ये देखना पड़ेगा। The lawyer had to interpret the contract carefully to make sure her client's rights were protected. इंटरप्रेट करना समझना है ना। तो थर्ड तो लग रहा है। ऑल आर करेक्ट ही करते हैं यार इसको। गलत ही होगा और क्या होगा कि साइंटिफिक लिटरेसी enables individuals to understand evidence-based arguments, distinguish facts from misinformation, and participate meaningfully in debates at technology and public policy.
मेरे को यहाँ डाउट है ए में, तो इसको लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा, है ना। और ये वाले में क्या है पोजीशन अपनी? लर्निंग टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक द वायलिन demands hours of daily practice and a significant amount of discipline from the student. Learning to play a musical instrument like the violin demands hours of daily practice. टाइम ही खत्म हो गया अब क्या। माइनस प्लस प्लस प्लस, और ये है अपना 9 और 5 14 होता है, माइनस प्लस 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 5 और 4 20 होते हैं। 9 इससे ज्यादा है, 9 इससे ज्यादा है, मतलब कि ऊपर वाला बड़ा बराबर, क्योंकि 5 बड़ा भी है और बराबर भी है। माइनस प्लस 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 12 दूनी 24 होता है, 6 और 4, 6 और 4 माइनस प्लस 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 कितना चाहिए? 40 चाहिए, है ना। 8 5 13, तो 8 और 5, लेकिन 16 और 5 दूनी 10, तो नीचे वाला हमको सीधे सीधे बड़ा दिख रहा है, क्योंकि अगर इसको तुम 8 और 5 भी करो तो 3 और 2 भी करो तो नीचे वाला बड़ा है, यानी कि y बड़ा है। फिर ये क्या है? 7 3 33, 6, तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारे से +6 -6, y की वैल्यू आ गई माइनस माइनस 7 और 6, तो ऊपर वाला इससे तो बड़ा है, इससे बड़ा है, 6 इससे तो बड़ा ही है ना, और ये इससे तो बड़ा है और बराबर है, तो खत्म। माइनस प्लस 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 11 और 10, है ना, और माइनस प्लस 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 9 और 8, 9 और 8, तो 11 जो है 9 से भी बड़ा है, 8 से बड़ा, 10 जो है 9 से बड़ा है, 8 से भी बड़ा है। ये हो गया। ये क्या है? ये नीचे वाला तो माइनस प्लस 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 है। एक सेकंड, ये वाले में क्या होगा यार? हाँ, 12 6 72, 12 5 60, 12 6 72, और फिर क्या है? माइनस और प्लस 180 चाहिए ना, तो 90 इंटू 2, 15 इंटू 6 इंटू 2। अब 15 और 12 भी तो होता है, लेकिन यहाँ नहीं है ना ऐसा कि 10 इंटू 9 भी तो होता है कि 18, और नहीं तो ये भी नहीं हो रहा। 5 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 2, तो कितना हो गया ये? न 10 और 20 और 9 नहीं, 180 180 180 180, चलो अभी स्किप करो, ये भी दिमाग में नहीं आ रहा है। 132 है वहां पे, है ना। 1650 में से अगर 132 गया, पहले 121 प्लस कर देते हैं, 5 तो 7 और 7, और ये 132 में 11 तो हो गया 9, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 1639 आ रहा है क्या कहीं? बिल्कुल है, 55% है ना, कि 11/20 इंटू 65, तो 65 5 11 715 माइनस 120, 6 4 24, 144, 5 4 के 11 4 के 7, 6 में से 1 लगे 5, और यहाँ 171 में से माइनस हो गया 20, है ना। और ये क्या है? 40%, 10%, 80, 40 32, प्लस 8 इंटू 5/4, ये 2 हो गया, तो ये 10 हो गया 330, और यहाँ से 10 में से 4 गया 6, 2 में से 3 में 216, 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। ठीक है, ये क्या है? 218 में से 190 चले गए तो 18 उस तरफ और 10 28, 28 और 145, 8 5 13, 4 2 6 और 7 173, और यहाँ पे अपन 64 प्लस करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 6 13, और 237, और 237 और 237 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 और 3 6 और 7 474, है ना। 10 का स्क्वायर यानी कि 100 इंटू 4 1/2 यानी कि 2, यानी कि ये 200 हो गया। 200 में 121 प्लस किया है 2, और 321, इसमें से 190 माइनस किया 1, 12 में से 9 गया 3, 2 में से गया 1, 131, 131 में से 110 माइनस किया 1, 2 21, है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और फिर डिवाइड बाय कितनी? 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 होता है क्यूब, ए सॉरी,
2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और फिर 16। तो 16 4 64 2 की पावर 16 फिर 32 और 64 है ना, 2 की पावर और 6 है ना। तो 3 4 5 6 2 4 4 2 8 2 16 16 ठीक है। फिर ये क्या है, 3/4 प्लस 5/16 माइनस 3/8 आएगा तो 16 ही एलसीएम, 12 प्लस 5 यानी कि 17 और 17 में से 6 चलेगा 11/16 और यहाँ से अपना है x/16 11 बचना चाहिए है ना। 15 6 90 12 36 12 4 48 8 में से 4 गया 4 10 में से 8 गया 2 और 120 यहाँ आके प्लस हो गया 2 6 और 90 माइनस हो गया 16 में से 9 गया 7 है ना। फिर क्या है 40 इंटू 3/2 यानी कि ये 20 और ये 60 माइनस 32 एक ये 28 बचा प्लस यहाँ x है और 80% 8 पूरे 32 320 में से 28 चले गए तो ये तो 292 हो जाएगा। 190 इंटू 4/38 38 को मैं 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 45 3 15 हाँ 5 5 चौके 20 20 18 इंटू 9 89 या 162 फिर ये कहता है 284। वेट मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, यहाँ दो और 142 माइनस का 2 आना चाहिए 32% यानी कि 16 ये ऐसे ही कर लेते हैं 32% 256 माइनस 80% of 120 12 8 जा 96 10 9 जा 108 96 5 16 पंचे 80 ठीक 24 इंटू 5 यानी कि 120 प्लस 324 है ना 4 और 4 और ये भी 4 इसमें से 2 का क्यूब चले गए 8 तो कितना बचा 4 चले गए और यहाँ से चले गए तो 436 और यहाँ कितना है 2 की पावर 4 यानी कि 4 1 4 109 ठीक है 105 यानी कि 5 इंटू 3 15 माइनस एक्स और 42 इंटू 12 12 दूनी 24 12 चौके 48 48 और 2 50 504 गलत किया हूँ क्या कुछ 504 से 9 या 8 यहाँ 489 नहीं ठीक है आंसर तो आया है तो सही है 160 है और 181 में से 88 चले गए तो 12 और 21 यानी कि 3 और 3 33 33 इसमें से प्लस करोगे तो 193 हो जाएगा 145 5 और 3 8 9 4 13 238 238 और 45 8 5 13 ये 8 283 है क्या ऑप्शन में 293 है चलो 3 7 कुछ गलत किया हूँ फिर मैंने क्या कि 160 प्लस 121 6 2 8 281 इसमें से 88 माइनस कर दिए अपन ने 11 में से 8 चले गए 3 चले गए 9 193 193 में 145 प्लस किए 5 और 3 8 10 और 4 14 और 3 348 में क्या कर रहा हूँ मैं 160 प्लस 121 6 2 8 281 इसमें से 88 चले गए यहाँ 7 हो गए यहाँ 1 हो गया 17 में से 8 गए 7 और 2 9 11 में से 8 8 और 3 11 तो 193 193 में मैंने 145 प्लस किया 5 और 3 8 9 और 4 13 और ये 338 और उसमें से 45 माइनस किया 8 में से 5 गए 3 13 में से 4 चले गए 9 तो 293 ऐसे ही सब क्वेश्चन है फालतू का टाइम वेस्ट करता हूँ 14 इंटू 3/2 यानी कि 7 21 माइनस 198 यानी कि तो 42 हो गया ना 8 में से 2 गया 6 9 में से 4 गया 5 156 माइनस का
और 108 यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो 6 में से 8 गया, 16 में से 8 चले गए तो 6, और 16 में से 8 गए तो 8 ही ना बचेंगे भी, माइनस का 48। ठीक है। A few tables and chairs were sold in shop ABC। इसको उठाने का रिस्क लेना है अभी। हाँ ठीक है। मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है और फ्राइडे है। 1 2 3 4 5। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल बुक्ड टिकट, द परसेंटेज नंबर ऑफ पीपल हु बुक फ्लाइट टिकट ऑन ट्यूसडे आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल, ना ट्यूसडे 320 टोटल नंबर, और फिर तुम्हारी से फ्लाइट की टिकट, यानी कि 320 का मल्टीप्लाई में करोगे 4, 128। कितने प्रकार की फ्लाइट और बस, आउट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल बस टिकट, तो 320 में से 128 चला गया, 192 इंटू 3/4, 4/4 जा 16, 32, 8/3 या 24 या 12, 4/3 या 12, और 144 वर मेल्स, 144 मेल्स आ गया। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हु बुक्ड टिकट ऑन सैटरडे इज 20% मोर देन ऑन मंडे। 280, 28 और 28 कितना होता है, 56, 6 8 5 13 और 336, 336 हो गया। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस विद द नंबर ऑफ पीपल हु बुक्ड फ्लाइट टिकट ऑन फ्राइडे। 70% है यहाँ पे, तो इसका 70% अपन निकालेंगे। 35, 370 और 21 और 2 फ्लाइट टिकट्स इन द नंबर ऑफ बस टिकट्स ऑन मंडे। 280 का भी अपन को 70% निकालना पड़ेगा। 56, 5 14 और 196, इसका डिफरेंस निकालना है। 51 आना चाहिए, 15 में से 6 गया 9, 49, 49 सॉरी 51 नहीं, 49 आएगा डिफरेंस, है ना। व्हाट फाइंड द सम नंबर बस टिकट्स। यार बस टिकट्स मैंने इसकी निकाला नहीं। 28 का 4 2 3 2 6 84, है ना। ट्यूसडे का, एक सेकंड, कौन सी निकालना है, फ्लाइट था ना, तो यही तो आएगा 196, और यहाँ 60%, 320 का 60%, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 192, 8, और वेडनेसडे का भी निकालना है, तो 144, 8 4 12, 10 और 4 14, 3 542। गलत केलेला माही, है ना। कौन सी निकालना है पहले ये बताओ। बस टिकट निकालना है, ये फ्लाइट है, तो 2 1 जा 2 4 जा और 2 4 जा, 320 का निकालना है तेरे को 60%, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 192, है ना। 6 4 13, 336, ठीक है। 280 का भी तेरे को निकालना है 70%, 56, 5 6 और 5 7 दूनी 14, 14 और 5 196, 13 532 सही होगा। फाइंड द 75% हु बुक्ड फ्लाइट टिकट ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन 320 इंटू 40, है ना। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इसका 3/4 और 2 3 2 जा 6, 3 2 जा 9, 96। ठीक है। इसको अपन करते हैं, पहले अपन वो देख के आते हैं क्या। एक ये क्वेश्चन में क्यों गलत कर रहा था। 180 है, पहले तो नीचे वाले तो कर लो ना, माइनस प्लस 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 12 6 जा 72, और प्लस है इधर 180 है ना, तो 15 इंटू 12 होता है 180। अब इसको 4 इंटू 3 भी लिख सकते हो, इसको 5 इंटू 3 भी लिख सकते हो, 9 और 20, नहीं 5 3 जा 15, नहीं यार 180 20 से करो, वो तो 9 होता है, 15 और नहीं, यार क्या कर रहा हूँ मैं, इतने ऐसे क्वेश्चन में फंस रहा हूँ। इसको एकदम बेसिक से करता हूँ।
18 5 सा और क्या हो सकता है? बाप रे, इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ यार, कोई बहुत ही दिमाग ही काम नहीं कर रहा है इसमें तो। टेबल ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे टेबल और चेयर बिकी हैं, और ये टोटल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चेयर्स टू टेबल सोल्ड इन शॉप ए बी एंड सी। क्या? 1 3 2 1 12 और 5। टेबल नहीं, चेयर्स टू टेबल, सॉरी 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 सॉरी, चेयर्स टू टेबल, ठीक है। द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड इन शॉप ए इज 20। चेयर बोले तो ये अगर 20 है तो ये 60 है, विच इज 100 लेस देन, यानी कि 120 सी में है, यानी कि इसकी वैल्यू अगर 60 है, नहीं नहीं, टेबल सोल्ड इन शॉप बी इज 40। बी में कितना था? अगर एक की वैल्यू 40 है तो 40 दूनी 80 यहाँ हो जाएगा। 100 लेस द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इन शॉप इज 20, यानी कि 120, और 10 ये 50 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड इन शॉप सी टेबल सोल्ड इन शॉप, यानी कि ये 1 और ये 2 हो जाएगा, 2 1। नंबर ऑफ टेबल्स है ना, 100, और 100 और 5 150। द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड इन शॉप डी, चेयर्स है ना, इसका आधा कर दो, यानी कि 100। नंबर ऑफ चेयर्स 100, ठीक है, और उसको साले को आखिरी में करूंगा। द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल 20%, यानी कि अगर सीपी मान लेते हैं कि अपना 100 है, एमपी अपना 120 हो जाएगा ना, सोल्ड फॉर अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 120, और 6 एक्स, इसमें से अगर 120 कर देंगे तो ये हमारी एसपी आ जाएगी। द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल से 3000, 3000 में ये 120 से भर गया 2, है ना, और 6 5 30, एक्स की वैल्यू आ गई 520, तो 2 जीरो और जोड़ दो, पता नहीं क्या किया हूँ, 2600। ठीक है, ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय 12 और 21, है ना, 4 और 3 7 या 3 4, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ ए लेफ्ट दी बिजनेस, यानी कि ये यहीं तक रहा और ये यहाँ तक रहा, 24 और 12 6 12 7 84, है ना, टोटल प्रॉफिट फॉर 6300। मैं कुछ गलत किया हूँ क्या? 12 और 21, 3 से किया 4, और 3 7 या 21, और ये तो आपका यहीं तक था और ये आपका यहाँ तक था, 6 1 6 2 जा, तो ये आपका हो गया 4 और ये आपका हो गया 14, है ना, 6300 डिवाइडेड बाई 21, 300, शेयर ऑफ बी 14 या 14 3 42। अरे क्या गलत कर रहा हूँ यार मैं? 1200, 2100, ये गया 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, एट द एंड ऑफ द ईयर ये 6 महीने के लिए था और ये तुम्हारा सही पूरे टाइम के लिए था, ये 24 हो गया, 12 7 जा 84 हो गया। ठीक है, 6300 4900 होगा, ठीक है। रेशियो ऑफ परसेंटेजेस बाद में करेंगे। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट, यानी कि 3 और 1 है तो डाउन स्ट्रीम 4, अप स्ट्रीम 3 में से गया 2, 96 डाउन स्ट्रीम 12, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, स्ट्रीम स्ट्रीम यानी कि 3 आएगा अपना।
है ना। द एवरेज ऑफ 14 बाद में करेंगे। ठीक ठीक ठीक, इसी को देख लेते हैं यार, ये क्यों नहीं बन रहा है। 180 है ना, 15 × 120 होता है, तो इसको तुम 90 × 2 करो, और फिर उसके बाद इसको तुम 10 × 9 करो, इसको तुम 45 × 2 करो, इसको 9 × 5 × 2 × 2, 3 × 3 × 5 × 2 × 2, कितना चाहिए वहाँ, 24। 4 5 जा 20, नहीं 3 2 जा 6 और 12 और 15, नहीं 10, 6 18, नहीं अरे खत्म ही हो गया टाइम। ठीक है, लीनियर में बैठे हैं, 3 4 5 6 7, मैं करता ही रह जाता और ये रीजनिंग है चालू हो गई थी। ई सेट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, तो ई यहाँ भी बैठ सकता है, ई यहाँ भी बैठ सकता है, ओनली 2% बिटवीन बी एंड ई, बी को यहाँ रख दो, एक और दो छोड़ के बी, दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। डी सेट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, डी सेट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ओनली 3% बिटवीन एफ एंड जी, एफ सेट्स टू द इमीडिएट ऑफ सी, सी डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड पे, यानी कि सी तुम्हारे से एंड पे नहीं है, और एफ के सी के इमीडिएट राइट में एफ बैठा है, सी सेट्स, और 3% है जी के बीच में, ठीक है। और मोर देन 3% सिट बिटवीन, 4 बैठ सकते हैं, तो सी तो यहाँ नहीं सकता, सी यहाँ नहीं सकता, सी यहाँ आ सकता है, और एफ से 1 2 3 छोड़ के जी। अब ए को तुम यहाँ नहीं रख सकते, ए को तुम यहाँ रख सकते, ये तो सही हो रही है अभी तक, सी को यहाँ नहीं सकते, सी को यहाँ नहीं सकते, सी को अगर मैं इधर रखता हूँ एफ, तो 1 2 3 छोड़ के नहीं, सी को अगर रखता हूँ एफ, 1 2 3 छोड़ के जी, और ए यहाँ आ जाएगा, तो इसमें गलत क्या है, मोर देन 3% से बिटवीन सी एंड ए, 1 2 3, यहाँ 3 बैठे हैं एग्जैक्ट, है ना, और यहाँ नहीं बैठे हैं, तो एच यहाँ आ जाएगा। द फॉलोइंग पर्सन सेट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, 1 2 3 4, सी बैठा है, सी सी, है ना, 1 2, ठीक है, ई से बोले थे। एच एंड डी, एच पर द फाइनल स्टेटमेंट 3, इफ ऑल द पर्सन अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि ए तो रहेगा बी सी डी, ए बी सी डी, ई एफ जी और एच अंजन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन 3, इफ द पोजीशन ऑफ जी एंड ए आर इंटरचेंज, जी को यहाँ रख दो, ए को यहाँ रख दो, इन द सेम वे बी और एफ की इंटरचेंज, एफ को यहाँ रख दो, बी को यहाँ रख दो, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए के सेकंड टू द राइट बैठा है एफ, ठीक है, ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल, एच सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, नो, एफ सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, नो, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, नो, 3% बिटवीन ई एंड एफ, नो, ए सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है ए, बिल्कुल सही। हाउ मेनी सच पेयर्स, 6 9 2 5, 6 9 2 5 4 8 1 3, यही था ना, 6 9 2 5 4 8 1 3, है ना। इसको निकालो, फैन बहुत आवाज करता है। 7 8 9 10 11 12 13, नहीं 10 तो हुआ, 10 तो नहीं, 3 4 नहीं, 3 4 5 6 7, 3 और 4, 6 7 8 नहीं, 6 7 8 9 नहीं, 4 के बाद 5, 6 7 8 नहीं, 5 6 7 नहीं, 9 10 नहीं, 9 10 नहीं, 2 3 4 5 6 7 नहीं, 4 5 6 7 8 9, 3 हो रहे हैं, बाद में करेंगे इसको, पता नहीं ये क्या है, ठीक है। 7 बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्स बिटवीन पी एन एन एम इस, ठीक है, पी से 2 छोड़ के एन, एन से 2 छोड़ के पी, और एम इज केप्ट इमीडिएटली बिलो एन, एम इज केप्ट इमीडिएटली बिलो एन, ओनली 4 बॉक्सेस, अगर मैं नीचे करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 1 2 3 4, तो आर तो इधर ही आएगा, पी, है ना, 1 2 3 और 4 छोड़ के आर बोले ना, 3 4 5 6 और 7, और या तो 1 2 3 और 4, तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉसिबिलिटी खत्म। आर इज नॉट केप्ट इन द टॉप मोस्ट पोजिशन, 1 2 3
4 5 6, तो यहाँ मतलब कोई ना कोई तो ऊपर है। O is kept above L but is not kept below। एक सेकेंड, एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर केप्ट अबव L। L के ऊपर मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तुमने क्या बोले? O is kept above L बट इज केप्ट बिलो Q। अच्छा, Q के नीचे है। तो यहाँ Q आ गया, यहाँ O आ गया और यहाँ L आ गया। इसमें क्या बनेगा कि यहाँ Q आ गया, यहाँ O आ गया और यहाँ L आ गया। तो तुमने क्या बोले? एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो L। ये वाली खत्म हो गई। 1 2 3 4 5 6 और 7 सही। विच बॉक्स इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो P। 1 2 3 छोड़ के रखा यहाँ N। ठीक है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन O एंड Q। 1 और 2। यहाँ 2 रखे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, टाइम खत्म हो रहा है। इफ ऑल द बॉक्सेस आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप से बॉटम है L M N O P Q और R। चेंज है, चेंज है, चेंज है, ये चेंज नहीं है, चेंज है, चेंज है। ओनली वन ट्रू है ना। O is kept in the topmost position, no। Q is kept 2 boxes above L, no। P is kept below M, no। O is kept exactly between N and R, yes। If M R interchange, M को यहाँ रखो, R को यहाँ रखो, in the same way L और N को यहाँ रखो और N को यहाँ रख दो। then which are the 3 boxes below M। 1 2 3 छोड़ के यहाँ रखा N। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन होगा, ओके नहीं है ना। क्या है ये? जॉयफुल, पीस एंड हैप्पीनेस। यार ऐसे ही कर लेते हैं। वीवी का कोड पूछे, वीवी यहाँ नहीं है, वीवी यहाँ नहीं, वीवी यहाँ नहीं, वीवी यहाँ, वो 2 कॉमन होगा। एली तो नहीं है, थिंग भी नहीं है, ऑलवेज नहीं, जॉयफुल होगा इसका आंसर। ठीक है ना। अब जेड आर और एक्स एन। जेड आर यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं, मतलब जेड आर अकेला होगा। तो ऑलवेज देखो कहीं है, देखो जॉयफुल तो है, वैल्यू यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। थिंग है, थिंग, थिंग यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो थिंग तुम्हारे से जेड आर का जो है ना, या तो थिंग है या तो ऑलवेज है। एक बार फिर से चेक करना। थिंग यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑलवेज यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, ठीक है। और एक्स एन कहाँ है? एक्स एन इसमें और इसमें है। तो वैल्यू एक्स एन का तो वैल्यू है, तो एक्स एन का क्या है? वैल्यू है। वैल्यू इसमें नहीं, वैल्यू इसमें नहीं, वैल्यू हैप्पीनेस नहीं होगा, वैल्यू ऑलवेज हो सकता है। ठीक है। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस यहाँ है। एवरी हैप्पीनेस वैल्यू गुड, जॉय पीसफुल, यहीं बस है। क्यू एस तो है, पीई और एच वाई में वो रहेगा, इधर ए और सी। ठीक है। समथिंग को तुमने क्या ले लिए? बी एन और जेड आर। जेड आर को तुमने थिंग लिए हो, तुमने लिए हो, और बी एन लिए तो व्हाट? हैप्पीनेस ऑलवेज। तो ऑलवेज का कोड हो जाएगा तुम्हारा, वी भी तो था ना, सी डी हो जाएगा। क्योंकि देख एक्स एन तो कॉमन था, वी भी कॉमन था, जेड आर तुमने इसको दे दिए, तो हैप्पीनेस का तो सी डी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। और ऑलवेज, ऑलवेज नहीं, हैप्पीनेस नहीं, ऑलवेज का सी डी होगा। सी डी यहाँ नहीं है। देखते हैं, हैप्पीनेस यहाँ है और हैप्पीनेस यहाँ भी है। इसी इसी में कॉमन देखो, एलपी कॉमन है नहीं, एमपी, एमपी, सी डी एम पी। पीस एंड माइंड, ठीक है। तो जेड ए तुमने पीस का ले लिए, जेड ए है ना, क्योंकि देखो पीस और कहीं तो है नहीं, जेड ए, जेड ए, जेड ए, तो तुमने पीस ले लिए, जेड ए। एंड, एंड का कोड क्या है? एंड यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। क्यू एस तो है, वी भी है, एंड कहीं है क्या? नहीं, हैप्पीनेस का तुमने नहीं, पीस और एंड, तो माइंड का तो जेड ए आर टी होगा, आर टी, क्योंकि क्यू एस तो होगा ही होगा। क्योंकि देखो ना,
यहाँ माइंड तो है नहीं, और यहाँ अपने आर टी, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो आर टी आई होगा। 4 स्टोरीड बिल्डिंग है ना, और ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी। 4 3 2 1, 1 2 3 और 4, ए और बी यहाँ। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी बना ही लेते हैं, और बी यहाँ। R lives on an even number floor and lives 2 floor above you, but on a different flat. R lives और above है, तो R या तो यहीं रहेगा, यहाँ रहेगा, R या तो यहाँ रहेगा, तो यहाँ रहेगा, और दो की पोजीशन बनेगी नहीं। Only one floor is between S and U. W lives immediately below Q. W lives, W यहाँ रह सकता है, या तो W यहाँ रह सकता है, या तो W यहाँ रह सकता है। ऑड नंबर फ्लोर में तो नहीं रह सकता W, तो W यहाँ ही रहेगा। ठीक है, नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ V, तो V यहाँ रहेगा, यहाँ भी रह सकता है। P lives below V, तो ये वाली तो कैंसिल हो गई। P lives below V in flat A। ठीक है, P Q R S और T था, तो T होंगे फॉलोइंग पर्सन लिव्स 2 फ्लोर बिलो Q विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। T या P रह सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में P है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ T तो है नहीं, तो गया। एज मैनी W, W W W और Q, तो Q तो नहीं है, तो V हो जाएगा। या तो Q होता है या तो V होता है, तो V होके खत्म करो। इफ R इज रिलेटेड टू Q जस्ट ऊपर है, इन द सेम वे इज U इज जस्ट ऊपर है टू V, टू Q है, मतलब कि 2 वाला नीचे है ना, यहाँ पे 2 वाला नीचे है, तो V ऊपर S, यही है ना ऑप्शन। ठीक है ना, T Q U, T Q U। हेलो हेलो, हाँ बना लो, थोड़ी देर से अभी नहीं। T Q U W, अरे ये क्या चालू हो गया यार। W और R, तो U होगा, U, U फ्लैट A में रह रहा है। सॉरी गाइस, इज नॉट ट्रू। R लिव्स, ये तो सही है, बिटवीन S और T, ये भी सही है। W लिव्स बिलो V, ये भी सही है। P लिव्स 2 फ्लोर अबव Q, P लिव्स, यही गलत है। हाँ, P से Q जाना है, बीच में कोई वो नहीं है, और जा सकते हैं क्योंकि W M के बीच में हो रहा है, और M से V जाना है, V नहीं जा सकते। ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। B से F जाना है, नहीं जा सकते, क्योंकि H जाओगे J जाओगे, J से नहीं जा पाओगे। F से H जाना है, नहीं जा सकते। तो B और F और H को लेकिन तुम B लिख सकते हो, तो मैं कह रहा था कि ये ऐसा है, और F को यही लिखो ना, और F ऐसा है, और H को तुम B लिख सकते हो। तीनों साइन हो गए मेरे हिसाब से, तो इधर और होना चाहिए, क्योंकि लाइन ब्रेक हो रही है, तुम जा ही नहीं सकते, है ना। और ए से ई, ए से क्यू, क्यू से डी, डी से ई, तीनों जगह डोरमेट है, बिल्कुल सही है। वाई से डब्ल्यू जाना है, वाई से ए चले जाओगे, ए से क्यू चले जाओगे, क्यू से जेड, जेड से डब्ल्यू जा सकते हो बोथ, है ना। फिर क्या है ये, सम चॉकलेट आर कुकीज, सम चॉकलेट आर कुकीज, ओनली अ फ्यू कुकीज आर कैंडल्स। ठीक है, कैंडीज, हाँ, नो कैंडी इज क्रीम। ऑल कैंडीज, ये कैन बी चॉकलेट, बिल्कुल हो सकती है। सम कुकीज आर नॉट क्रीम, सम कुकीज आर नॉट क्रीम, बिल्कुल सही बात है ना। सम कुकीज आर नॉट क्रीम सही है, बोथ 1 और 2 फॉलो। ऑल सॉल्ट इज शुगर, यानी कि पूरा का पूरा जो सॉल्ट है इज शुगर, सम शुगर इज मेल्टेड, ऑल मेल्टेड इज आइस। ठीक है, नो आइस इज सॉल्ट, गलत। सम आइस इज सॉल्ट, गलत। इधर और होगा, ये तो सीधी सी बात है ना। ओनली एनिमल आर टाइगर, यानी कि ऑल टाइगर आर एनिमल रिजर्व्ड। ओनली फ्यू एनिमल आर पांडास, पांडास पूरा का पूरा एनिमल के अंदर जा सकता है। नो पांडा इज पैरेट। ठीक है, ऑल पांडास
कांट बी एनिमल, गलत, एनिमल तो हो सकता है, सम एनिमल कैन नेवर बी पैरट, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ओनली सेकंड फॉलो। 6 फ्रेंड्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एटलीस्ट 3% हैव लेस, मतलब मिनिमम तो होना चाहिए। सी यहाँ आ सकता, सी यहाँ आ सकता, सी यहाँ आ सकता, पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। डी हैज मोर चॉकलेट देन बी, डी हैज मोर चॉकलेट देन बी बट लेस चॉकलेट देन ई। एफ हैज लेस चॉकलेट्स देन ए एंड ट्वाइस दैट ऑफ ई, मतलब कि यहाँ तो है और ए से कम है, तो 1 2 3 4 5 हो रहा है, ठीक है। ए डज नॉट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट, फर्स्ट पे तो नहीं है। द पर्सन विद द थर्ड लीस्ट चॉकलेट, 1 2 3 7 है, तो ए के नीचे आ जाएगा एफ, नहीं ये तो मना किया ना, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ रखो ना, ए के नीचे एफ ई, ये तो गलत है, तो यही होगा, ए के नीचे एफ ई डी और बी, तो इसके पास है 14, बोलेंगे ना तुमने, एफ हैज डबल, कहीं लिखा तो था, हाँ। हाउ मेनी पर्सन हैव मोर चॉकलेट्स देन ई, ई से ज्यादा है 3 लोगों के पास में। इफ द सम ऑफ चॉकलेट सी और एफ है ना, सी और एफ का कितना बोल रहा है, 31, 31 में से 14 गया, 11 में से 4 गया 7, 2 में से 17, सी के पास है 17, तो डी, व्हाट वाज द टोटल है, डी के पास 10 28, 8 और 3 11 भी तो हो ही सकती हैं, नहीं ये बताऊं कितना, 13 18 और 11, इफ द सम ऑफ द चॉकलेट्स ऑफ सी और एफ के बीच में 31 है, एक सेकेंड, तुमने क्या बोले, 31 है ना, 11 में से, तो में से एक, 11 में 4 चले गए 7, तो सी के पास 17 हो गई, तो अब डी और सी के पास कितनी हो सकती हैं, तो चलिए मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स ए के पास में, मैंने गलत तो नहीं किया है यार वो। M has only one daughter, N is mother-in-law Z. M has only one daughter, N is mother-in-law of Z. X is the brother-in-law of Z. X is the brother-in-law of Z. Z who does not have any sibling, ठीक है। O is the niece of X. तो O is the niece of X. Y is the paternal grandfather of O. Y is the paternal grandfather of O. P is the daughter-in-law of W. ठीक है। W who is married to X mother. W X mother, और तुमने क्या बोला था, P is the daughter in law of W, तो P is the daughter in law of W, ठीक है। यहाँ मदर आएगी है ना। N is the only sister in law of P, N is the only sister in law of P. W has only 2 children. मतलब ये MI है, 2 चिल्ड्रन हो गए। Y is not married to M, ठीक है। हाँ, तो if A is married to O, A is married to O, how A is related to Z, A तो लगा brother son in law है ना। How many female members are there in the family after the arrangement, female members 1 2 3 और 4, नहीं बता सकते हैं। अरे अरे साला ये कहाँ से आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट विद इन द नंबर, तो 7 6 2 डिसेंडिंग में बोल रहे ना, बड़े से छोटे में, 9 5 4, तुमने कहा थर्ड हाईएस्ट बोले ना, 8 3 1, ये हाईएस्ट, फिर ये भी कर लो, 8 5 4 और 9 6 2, फर्स्ट ये बन गया, सेकंड ये बन गया, थर्ड ये बन गई, ये तुम्हारे जो 584, इन द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ईच नंबर आर इंटरचेंज आफ्टर द सेकंड एंड थर्ड डिजिट इंटरचेंज, तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड,
सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड, तो ऐसे ही को करेंगे ना बस अपन। द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट और इंटरचेंज 4 8 5 एंड आफ्टर दैट सेकंड एंड थर्ड डिजिट और इंटरचेंज 4 5 8। The begin with the following digit with the third digit from the left end of the second number from the right end. थर्ड डिजिट ऑफ दी 8 होना चाहिए, है ना। और ये क्या था यार, देखो सी और एफ, एफ आ रहा था 14, तो सी के पास एक मतलब सम बोले थे तुमने, 11 में से 4 चला गया 7, 3 में से 1 चला गया 2 में से 1 चला गया 17। अरे यार करना था यार इसको पूरा। टेस्ट चालू है, टेस्ट टेस्ट। सॉरी वो एक कॉल आ गया था तो यहाँ नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो कहाँ गया अपना मॉक टेस्ट, क्या आया है अपना रिजल्ट। ए यार 87.25, 91 अटेम्प्ट किए थे। देखो आज क्या बोलूं अब मैं, रीजनिंग में यार क्यों नहीं हुआ पूरा अटेम्प्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कारण हुआ ही नहीं, सीधा सीधा 1-2 नंबर और वहां बढ़ते यार। आज तो 90 जाना था यार इस टेस्ट में। व्यू एनालिसिस, रैंक क्यों नहीं आई है मेरी, ये देखो यार परसेंटाइल अच्छी ही नहीं हो रही है आरबीआई के मॉक में। 78.41 परसेंटाइल, रैंक आई है 4,987, 23,000 बच्चों में से 87.25 अपने नंबर आए हैं। 91 क्वेश्चन अपन ने अटेम्प्ट किए थे, एक्यूरेसी ठीक है। थोड़ा सा आज मेरे दिमाग में वही लेके चला था कि मैं एक्यूरेसी लेके चलूंगा, इसको गलत नहीं करूंगा आज ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी रीजनिंग में तो देखो परसेंटाइल अच्छी है कि 97.14, मैथ्स में 60 परसेंटाइल बस, और इंग्लिश में 68। ये बहुत खराब है ये दोनों। चलो देखते हैं क्या गलत हुए हैं अपने, एक शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। डैशिंग, डैशिंग का मतलब क्या होता है, डैशिंग अपर ट्री मेक सेंस या डैश। मैं कंफ्यूज बाकी में होता, लेकिन डैशिंग तो दिमाग में आ ही नहीं सकता यहाँ, क्योंकि यहाँ तो ये लिखा है ना कि लियो ने उसको देखा, किसको, स्क्विरल को, बिफोर क्विकली डैशिंग अप अ टॉल ओक ट्री। डैशिंग का मतलब होता है डैशिंग अप अ ट्री मेक सेंस, फास्ट एनर्जेटिक मूवमेंट। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा होगा। डैशिंग, क्रॉलिंग तो एक लगेगा भी कि हाँ क्रॉलिंग चढ़ रहा है या ऐसा कुछ, लेकिन वो भी सही कह रहा है कि क्रॉल नहीं करता है ट्री में। डैशिंग क्या फालतू, ओनली टू करेक्ट, जनरली हैज टू मीनिंग, है ना। ये लग ही रहा था कि हाँ, तो मेरे को क्या बताना था। यही गलती है अपना ना, जो अपन बोलते हैं ना कि पेपर 1 नंबर से नहीं निकला, 0.25 से नहीं निकला, 0.50 से नहीं निकला, ये है वो गलती। सब लोग देखो, मैं यहाँ कर रहा हूं, मैंने यहाँ नहीं पढ़ा कि यहाँ पे ये देखो, अपन को वो निकालना था जो इनकरेक्टली यूज है, इनकरेक्टली, और मैं करेक्ट वाले कर रहा हूँ। खैर वो भी गलत किया हूँ, लेकिन यहाँ इनकरेक्टली था ना। और ये इनकरेक्ट में मैं, मेरे को ये लग भी रहा था कि ये फुटबॉल मैच इनकरेक्ट लग रहा है, और यहाँ पे भी इनकरेक्ट था। अगर इनकरेक्ट मार्क करना था तो मैंने क्यों किया, सिली मिस्टेक। ये जेन्युइन मतलब ये दो जो है 23 और 24, ये एकदम सिली मिस्टेक है, 100% माई फॉल्ट है। इसमें ऐसा नहीं कि मैंने समझा नहीं, नहीं मेरी गलती है। ये डैशिंग का तो कोई अंदाज नहीं था। अच्छा, इसको अगर अपन
करके देखे तो इसमें डी में एरर बोल रहा था कि टेक्नोलॉजी, क्यों डी में एरर, क्या पार्टिसिपेट मीनिंगफुली एट इज नॉट आइडियोमेटिक विद डिबेट्स इन दिस कंटेंट, देयरफॉर एट टेक्नोलॉजी अपन को नहीं समझ में आ रहा। मेरे को इसमें लग रहा था कि नो एरर, और नो एरर आंसर है, लेकिन बात वही है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं है अभी एरर डिटेक्शन में, तो अपन नहीं मार्क करते हैं। फालतू में यार, इंग्लिश में ये 2 गलती, ये 3, ये डैशिंग तो चलो ठीक है, 3 एक नंबर यहाँ बढ़ते। और वो कहाँ है, वो 180 कहाँ है जो मैं नहीं कर रहा था, क्या है 180, 3606, ऑब्वियस सी बात है, 30 इंटू 6 180, 30 में से 6 गया 24, ये सारा लेकिन दिमाग में आ ही नहीं रहा था यार बिल्कुल। और इसमें टाइम देख रहा है 2 मिनट 53 सेकंड, बाप रे बाप, इतने में तो एक डीआई सॉल्व होती है, पजल सॉल्व हो जाती हैं, 2 पजल सॉल्व हो जाती हैं इतने में। या मैथ्स में अगर मैं और कोई क्वेश्चन जाता तो मैं कम से कम अर्थमेटिक के 2 क्वेश्चन कर, 3 मिनट इस क्वेश्चन को, छी। और ये मैंने भी किए ही नहीं, क्योंकि अगर मैं इनको ट्राई करता, जैसे ये एजेस वाला जो था ये मैं कर सकता था, ये एवरेज वाला भी कर सकता था, हाँ सीआई वाला भी कर सकता था, लेकिन नहीं हुआ। रीजनिंग एबिलिटी में, हाँ इसका ये क्या था, इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा था। बनाया तो मैंने सही था कि C17 था, है ना, तो पॉसिबल नंबर 24। हाँ ये तो मेरा भी आया था कि अगर C17 है इस साल, अरे यार, मैंने इसको ई को 14 लेके कैलकुलेट कर रहा था, मेरे को ध्यान है अच्छे से उसमें, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। रीजनिंग में मेरे को ये देखना है कि मैंने टाइम कहाँ दिया हूँ, ये तो ठीक है यार, सही हो गई। यही था क्या टाइम देने वाला, थोड़ा सा देखो इसमें 1 मिनट तो नहीं देना था, लेकिन मैं इसको इसलिए 1 मिनट दिया था क्योंकि ये मेरा गलत होता है हमेशा, है ना। और कहाँ ज्यादा टाइम दिया हूँ मैंने, थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग में टाइम ज्यादा दिया हूँ, है ना, इनमें नहीं दिया हूँ, इनमें तो ठीक है कि 20-20 सेकंड में किए हैं अपन ने। यही वाला कह सकता हूँ यार कि ऑर्डर रैंकिंग, और वो इस क्वेश्चन के कारण उसमें टाइम ज्यादा है। रीजनिंग से मेरे को कोई वो नहीं है, रीजनिंग मैंने ठीक अटेम्प्ट किया हूँ क्योंकि ये वाला बन ही जाता, और ये मैं छोड़ता ही, ठीक है। इंग्लिश में तो यार, लेकिन क्या कर रहा हूँ साला। जाना था यार, 90 टच होने वाला मॉक टेस्ट था ये, 90 में कुछ नहीं तो अपनी, 90 टच होने पे इसमें अपनी रैंक आती 3000 के आसपास, और 3000 के आसपास में यार, ठीक है सीधा सीधा बहुत, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं है, ठीक है। मैं इस चीज से खुश हूं कि मैंने मैथ्स और रीजनिंग में अपनी एक्यूरेसी को ध्यान में रखा है, और वहां मैं 100% एक्यूरेसी अचीव कर रहा हूं। इंग्लिश में एरर डिटेक्शन में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं तो पहले तो ये भी नहीं था, और वो 2 क्वेश्चन फालतू सिली मिस्टेक गलत हुई। तो ठीक है, जो भी आप में से इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेगा जरूर करना, क्योंकि ये अच्छा टेस्ट है, इजी है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इससे सभी का। और बताना अपना स्कोर क्या रहा है इस मॉक टेस्ट में। तो यहीं तक थी ये वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम कोई ना कोई मॉक टेस्ट या फिर किसी मॉक का एनालिसिस कर लेंगे, है ना, क्योंकि लाइव मॉक टेस्ट ये अटेम्प्ट करना, ये 3 वीडियो ऐसे ही होगा। ठीक है गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।